Hello children. Now from this video we are going to start with the chemical reactions of amines. And under the chemical reactions of amines, the very first thing which we are going to discuss is basic character of amines. Here you should note that this topic is very important because there are questions given with reference to this topic in the NCERT backside exercise also. In-text questions are also there on this topic. And moreover, many of the questions out of this topic are asked in the board exams also. So take it very seriously and try to understand it. This topic, the basic character of amines, is going to be a big topic. Will not be finished in this video, so we will be coming up with the parts of it. Right? Now, the heading itself, that basic character of amines, the heading itself is telling amines are basic in nature. Amines का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है. दे एक्ट एज अ बेस. तो बेसिक क्यों होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. अमाइंस की रिएक्टिविटी का कारण क्या है ये डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट अमाइंस, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, with ammonia, and among them also we will see the comparison, like in alkyl amines 1 degree, 2 degree, 3 degree, how they vary with respect to basicity. This all we are going to discuss one by one. So now if anybody asks you what is the reason behind the chemical reactions of amines, so you should note down the difference in electronegativity. The question is, what is the reason behind the chemical reactions of amines? So the answer is, the reason is difference between the electronegativity of nitrogen and hydrogen. जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमाइंस में प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. हमें पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से. और दूसरा मेजर रीजन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ओवर नाइट्रोजन, और ये कॉमन बात है सारे अमाइंस के अंदर. So these two are the reason due to which amines are reactive. Amines की reactivity का ये major कारण है ये दोनों चीजें. So if anybody asks you what is the reason of the reactivity of amines, then the answer is the difference between the electronegativity of nitrogen and hydrogen of amines and presence of lone pair in amines. Now you see, you already know the formula of amines from the previous video. 1 degree amine is RNH2, right? And the nitrogen has the lone pair. Similarly, 2 degree amine can be written like this. You can write the R here or can write here, anywhere you wish. So this is 2 degree amine. Here also nitrogen is same, which is derived from ammonia. So we'll bear the lone pair. And then in 3 degree, this is the situation. So again nitrogen is having lone pair and there is no hydrogen in 3 degree. So if we talk in terms of reactivity, ये तीनों ही काफी रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन पे लोन पेयर है, मगर एक सिमिलर रिएक्शन के अंदर ये अलग अलग बिहेवियर भी शो कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि एक सेम रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अलग तरह की रिएक्शन कर सकता है, 2 डिग्री अलग तरीके की कर सकता है और 3 डिग्री अलग तरीके की रिएक्शन शो कर सकता है. या हो सकता है कोई रिएक्ट करे किसी रिएजेंट से इन तीनों में से और कोई ना करे. तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखें यहाँ पर RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि 2 डिग्री में सिर्फ 1 एसिडिक हाइड्रोजन है और 3 डिग्री में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. और इस डिफरेंस के कारण ही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स दे शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. ये अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं.
मैंने अभी तक आपको 2 बातें बताई कि इनकी केमिकल रिएक्शंस का रीजन क्या है, तो जवाब था ये, और इनकी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का रीजन क्या है, तो वो ये है। सो बेसिकली मेन रीजन क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो बेसिकली यहां पर एक बात ध्यान दें कि केमिकल रिएक्शन करने का मेजर रीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज present on the nitrogen. So the summary is they are reactive due to acidic hydrogen and the presence of lone pair on hydrogen. And one more thing you should note down here, if you see the bond which is formed between nitrogen and hydrogen in amines, if I take an example of, say, suppose R NH2, that is your primary amine. If I take this example, then you very well know nitrogen is more electronegative than hydrogen. So what happens is this bond is going to be polar. Why? Because nitrogen is more electronegative, will drag away the shared pair of electron from hydrogen और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसका लेगा, जिसके कारण पार्शियल नेगेटिव आएगा उस पर और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है अमाइंस में, वो पोलर हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर जो ये बॉन्ड है ये पोलर हो जाएगा। अब ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन कि अमाइंस क्यों रिएक्टिव होते हैं और अमाइंस की आपस की रिएक्टिविटी अलग अलग क्यों होती है। नाउ हियर वी बिगिन विद द मेजर पॉइंट अंडर द हेडिंग केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइंस। और बेसिकली अमाइंस जो हैं या तो वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, अमाइंस दे बिहेव आइदर एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल, यू नोट डाउन। ओके, सो वी विल डिस्कस बेसिकली द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन दिस टॉपिक। नाउ जस्ट सी, यू कैन राइट द हेडिंग एज बेसिसिटी ऑफ amines. So if there is a question why amines are basic, हम amines को basic क्यों कह रहे हैं, तो जवाब होगा कि because there is a presence of one lone pair on nitrogen. LP means lone pair of electron. Lone pair is what? The pair of electron which doesn't participate in bond formation. So lone pair on nitrogen is present. And we know very well in 11th class we have studied the species which can donate lone pair of electron, they are called as Lewis bases. So ammonia as a Lewis base act करेगा। एक और बात ध्यान देने वाली है कि हम किसी चीज को बेसिक या एसिडिक कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देखें, अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी अमाइन ले लें, मैंने 1 डिग्री लिया है, इसकी अगर मिनरल एसिड से रिएक्शन कराएं, जैसे HI, HBr या HCl, इनसे रिएक्शन आप कराएंगे तो यहां पर इस रिएक्शन में आपको मिलेगा कंपाउंड RNH3 प्लस X माइनस। यहां हुआ यूं है कि ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन की तरफ खिंचकर चला गया और ये जो लोन पेयर था वो बॉन्ड बनाने के काम आ गया। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। ये देखें, RNH2 जो है वो कैसा था, ऐसा था। ठीक है, नाइट्रोजन पे था लोन पेयर, इस लोन पेयर ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में और इस हाइड्रोजन को इसने अपने पास जोड़ लिया। तो ये जो स्पीशीज डेवलप हुई, यहां पर नाइट्रोजन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ये बॉन्ड बनाने के काम आ गए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, इसीलिए हमने लिखा है RNH3 प्लस। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भी हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ गया और हेलोजन हैज इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड। ये देखिए, ये था, ये हेलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, उसने ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, इसीलिए क्या बचा, X माइनस, और वो इस स्पीशीज के साथ ऐसे प्रेजेंट रहता। और ये क्या बन गया, ये बना है सॉल्ट। सो सॉल्ट कब बनता है, ये तो एसिड है, और एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट बनता है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि अमाइंस जो है वो बेसिक हैं। अब जो सॉल्ट फॉर्मेशन के पिछले रिएक्शन मैंने लिखी, वो अगर एलिफेटिक अमाइंस की थी तो ऐसी सेम रिएक्शन हम एरोमेटिक के लिए भी लिख सकते हैं।
मान लेते हैं कि R की जगह फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो R की जगह अगर हम फिनाइल ग्रुप ले लें तो यहाँ NH2 सेम सिचुएशन है, सिर्फ R बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर देखा तो यहाँ नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सेम रिएक्शन कराते हैं विद HX तो यहाँ भी वही होने वाला है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा एज द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द प्रीवियस पेज। सो यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन ही होगा and this is what is NH3 plus X minus, and this species is something which is very very important, and this species is called as anilinium salt। ये anilinium salt कहलाता है। and basically ये जो प्लस माइनस चार्जेस हैं which are holding this salt are electrostatic force of attractions। सो ये जो रिएक्शंस अभी आपने देखी पिछले पन्ने पर एलिफेटिक के लिए और ये एरोमेटिक के लिए सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, तो दीज टू रिएक्शंस, यू कैन से अबव रिएक्शंस आर स्टेटिंग व्हाट, आप सॉल्ट बना रहे हैं, एसिड से आपने रिएक्शन कराई है, तो डेफिनेटली जिसकी रिएक्शन कराई है आपका अमाइन वो बेसिक है, बेस है, तभी तो वो सॉल्ट बना रहा है एसिड से रिएक्शन करने पे। सो द अबव रिएक्शंस proves that amines are basic in nature. Amines are basic in nature. amines जो है नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। एंड यहां हम क्यों कह रहे हैं कि वो बेसिक हैं, क्योंकि बेस क्या करता है, हमने बेस के लिए दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। बेस या तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है या फिर जो है अगर लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है। तो इस रिएक्शन में वो लोन पेयर तो डोनेट नहीं कर रहा पर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। देखो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, सो एज इट इज एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन और यू कैन से एज इट इज एक्सेप्टिंग H plus in above reactions, so you can say the amines are basic in nature. Now अब इसको अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि जो अमाइन का सॉल्ट बना, ये सॉल्ट या पिछली रिएक्शन में जो सॉल्ट बना था, पिछली रिएक्शन में क्या सॉल्ट बना था, आर जो है एलिफेटिक था ऐसा मान लें, और पिछली रिएक्शन में कुछ ऐसा सॉल्ट बना था, और एरोमेटिक के साथ C6H5 NH3 plus X minus ये बना है, एनिलीनियम सॉल्ट बना, एनिलीनियम सॉल्ट। ओके, मैंने फिनाइल ग्रुप को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया है रिंग हटाकर। तो ये तो एलिफेटिक का सॉल्ट हो गया, ठीक है। मान लें कि RCH3 है तो यूल अंडरस्टैंड, और ये एरोमेटिक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही सॉल्ट्स जो बने हैं इन रिएक्शन से, अगर हम इनके किसी बेस से रिएक्शन करा दें, इनमें से आप कुछ भी ले लें जो आपका मन करता हो, मैं ये उठा लेती हूं तो RNH3, और मान लेते हैं कि X की जगह Cl माइनस है, कोई भी आप हैलोजन ले सकते हैं, मैंने क्लोरीन ले लिया है। अगर हम इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस जो है पैरेंट अमाइन मिल जाएगा। पैरेंट अमाइन, इस रिएक्शन पर जाएं, वो पिछले पन्ने पर जिस रिएक्शन से ये सॉल्ट बना था वहां स्टार्टिंग क्या थी, ये थी RNH2 ने ही पिछले पन्ने पर क्या किया था, हमने RNH2 को HX से रिएक्ट कराकर ये बनाया था। तो अगर इस प्रोडक्ट में आप बेस डाल दें तो ये क्या कर देगा, वापस पैरेंट अमाइन बना देगा। तो इसीलिए RNH2 वापस मिल गया है, और RNH2 से ही ये बना था। साथ में जो है आपको मिलेगा वाटर। वाटर कैसे मिलेगा, यहां से एक H और OH मिलकर वाटर बना देंगे, और एक मॉलिक्यूल आपको NaCl का मिलेगा। सो दिस इज द रिएक्शन। अब जो आपका अमाइन बना है, सपोजिंगली एनी अमाइन यू आर गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर। आपने अमाइन लिया, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई सा भी ले लें, मैंने प्राइमरी ले लिया है। अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करती हूं, ठीक है, तो वाटर एज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड बिहेव करता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी कर सकता है। लेकिन इस रिएक्शन में ध्यान दें कि वाटर H प्लस डोनर का काम कर रहा है, उसने इसको जो है H प्लस दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये बनेंगे, ठीक।
वाटर को हम H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं, तो H प्लस इज मीन्स गोइंग एंड ज्वाइनिंग RNH2, सो RNH3 प्लस बना और OH माइनस आपका बच गया जो ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है एसिड जो है वो वाटर H प्लस दे रहा है, और H प्लस डोनर क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर इस रिएक्शन में वाटर एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, ये बेस हुआ। ठीक है, तो इस रिएक्शन से भी ये प्रूव होता है कि ये जो है बेस है। और दूसरी चीज, इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली दे विल बी वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लुईस बेस होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वर्किंग एज अ लुईस बेस इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यहां पर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयर से उसने क्या किया है, H प्लस को ऐड कर लिया है। नाउ इफ वी गो बैक एंड सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो है प्रोसीड कर सकती है। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे वो होगा बेसिसिटी कांस्टेंट, एंड बेसिसिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kb। ठीक है, तो Kb इज इक्वल टू क्या, if you remember the definition of equilibrium constant, it says that it is the ratio of product to the product of reactant। कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, 2 बार प्रोडक्ट वर्ड आया है, मैं आपको लिखकर बताती हूँ वो क्लियर हो जाएगा। सो प्रोडक्ट, आई एम स्पीकिंग प्रोडक्ट वर्ड फॉर दिस। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ 2 बार प्रोडक्ट यूज किया है और दोनों का मतलब अलग अलग है। पहला प्रोडक्ट का मतलब द रिलेशन इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दूसरे प्रोडक्ट का मतलब है कि यू विल हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर दिस। Okay, so this is what is the equilibrium constant for this equation, which on rearranging we know that water जो है बहुत large excess में होता है तो उसे हम usually neglect कर देते हैं। तो अगर हम water को neglect करते हैं, NCERT में water को Kb के साथ लिख दिया है, आप वैसे लिख दे या neglect कर दे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों तरह से लिख के बता देती हूँ। water को इस तरफ ले लिया जाता है क्योंकि हमें उसे नेग्लेक्ट करना होता है, क्योंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान कुछ खास परिवर्तन नहीं आता। सो वी आर राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट में वी आर ओमिटिंग वाटर बिकॉज इट हैज टू बी नेग्लेक्टेड। और आप इसे सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल यू मे राइट Kb इज इक्वल्स टू RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2. So this is the relationship of Kb. So if anyone has the doubt, अगर किसी को डाउट है कि Kb क्या है तो लिख ले Kb is बेसिसिटी कांस्टेंट। हम बेस की बात कर रहे हैं तो बेसिसिटी कांस्टेंट है। ऑल्दो जब मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रही थी तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बट वो एसिड्स होते हैं तो वहां हमने Ka पढ़ा था। वहां भी मैं बहुत अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो आई होप इफ यू हैव गॉन थ्रू आपको याद आ रहा होगा। वहां हमने Ka पढ़ा था एंड Ka स्टैंड्स फॉर एसिडिटी कांस्टेंट। तो Kb जो है हमने देखा कि क्या होता है, बेसिसिटी कांस्टेंट होता है। मगर यूजुअली क्या होता है, जो हमें वैल्यूज दी होती हैं वो कभी भी Kb के फॉर्म में नहीं दी रहती, बहुत रेयरली Kb की वैल्यूज दी रहती, हमेशा Pkb की वैल्यूज दी रहती हैं। एंड Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। ये सब रिलेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए जो है मैं आपको ये लिखकर बता रही हूँ। लॉग यहाँ क्यों अप्लाई किया जाता है, जिससे रीजनेबल वैल्यूज मिल सके। अदरवाइज वैल्यूज बहुत अलग सी ऑकवर्ड टाइप की आती है, छोटी छोटी सी Pkb और Kb की, इसीलिए लॉग
यूज किया जाता है, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ रिलेशनशिप है जो ये बताता है कि केबी और पीकेबी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है। सिर्फ ये याद रखें। और अगर ये भी नहीं याद रखना है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मान लें किसी क्वेश्चन में आपको केबी की वैल्यू दी है, ठीक है, केबी की वैल्यू दी है, तो जिसकी केबी की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है, दो चीजों की मान लें केबी की वैल्यू दी है, जिसकी केबी की वैल्यू लार्ज होगी वो जो है क्या होगा, मोर बेसिक होगा। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू केबी की उतना ज्यादा बेसिक होगा वो दिया हुआ चीज। अगर केबी लार्ज है तो डेफिनेटली पीकेबी क्या होगा, स्मॉल होगा। पीकेबी कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ पीकेबी ऑल्सो डिनोट्स मोर बेसिसिटी। इससे हमें क्या समझ में आता है, फिर से बता रही हूं मैं, ध्यान दें, अगर केबी लार्ज है तो पीकेबी पक्का स्मॉल होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स का रिलेशनशिप रखते हैं। और केबी लार्ज है मतलब जो है, जो भी आपका बेस है वो मोर बेसिक होगा। तो इस रिलेशनशिप से हम दो फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत जरूरी है कि हम उनकी बात करें। सो व्हाट आई सेड, अगर केबी बड़ा है तो बेसिसिटी ज्यादा है, यानी कि वैल्यू ऑफ केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक, क्लियर होता है। एक फॉर्मूला ये आया, मान लीजिए आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, सबकी केबी की वैल्यू दी है, तो जिसकी केबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। पर मान लिया आपको पीकेबी की वैल्यूज दी हैं, तो पीकेबी की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। तो जिसकी पीकेबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम बेसिक होगा। इनवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि केबी की वैल्यू जो है वो अगर बड़ी है तो ज्यादा बेसिक, छोटी है तो कम बेसिक, और पीकेबी में इसकी उल्टी बात करना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं आपको ये जो मैंने अभी 2 बातें बोली है इनको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो अमोनिया का जो बेसिसिटी दिया हुआ है वो पीकेबी की वैल्यूज में दिया है, और पीकेबी वैल्यू अमोनिया की कितनी दी है, 4.75। और जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस हैं एलिफेटिक वाले, एलिफेटिक अमाइंस, इनका रेंज ऑफ बेसिसिटी दिया है 3 to 4.22, और ये वैल्यूज काय की है, पीकेबी की वैल्यूज हैं, पीकेबी की। तो अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ, हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री छोड़ करके मैं सिर्फ 1 डिग्री ले लेती हूँ। मान लेते मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया और उसकी बेसिसिटी 4.22 है। ठीक है, मैं फिर से लिखती हूँ इस चीज को, अमोनिया की पीकेबी जो है वो है 4.75, और हमें एक प्राइमरी अमाइन दिया है RNH2। मान लेते हैं इसकी पीकेबी वैल्यू जो है 4.22 है। ठीक है, मैंने बोला 1, 2 और 3 डिग्री तीनों की 3 से 4.22 की रेंज में होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैंने मान लिया है कि इस रेंज में से इतनी वैल्यू है RNH2 की। तो अभी क्या बोला था, पीकेबी की वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी वो उतना कम बेसिक, है ना, इनवर्स का रिलेशनशिप था। तो यहाँ अमोनिया की पीकेबी वैल्यू बड़ी है RNH2 से, इसका मतलब अमोनिया इज लेस बेसिक, एंड अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो बेसिसिटी क्या होगी, 1 डिग्री विल बी मोर बेसिक। ये तो हमने समझा इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ पीकेबी। आई होप आपको क्लियर है। पीकेबी का वैल्यू जिसका बड़ा होता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा पीकेबी की वैल्यू और बेसिसिटी में इनवर्स का रिलेशनशिप है। तो अगर ये बड़ा तो बेसिसिटी कम, ये पीकेबी बड़ा इसीलिए ये कम बेसिक, पीकेबी छोटा इसलिए ये ज्यादा बेसिक। ये हो गया इनवर्स का रिलेशनशिप, आपको वैल्यू और एग्जाम्पल से भी समझ आ गया। अब नाउ द मेजर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर इज, ये तो हमने वैल्यूज के टर्म्स में, पीकेबी वैल्यूज के टर्म्स में अमोनिया और 1 डिग्री अमाइन को कंपेयर किया। और एक चीज और ध्यान देने लायक है यहाँ पर, किसी भी केस में चाहे वो 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री हो, ये वैल्यू 3 से 4.22 के बीच में है इन तीनों की, तो ये सारे के सारे ज्यादा बेसिक होंगे अमोनिया से इन टर्म्स ऑफ पीकेबी। ठीक है, ये तो हमने पीकेबी के टर्म्स में समझा। नाउ लेट अस कंपेयर एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरी।
अब जो मैंने आपको पीकेबी की वैल्यूज बताई 4.75, 3 से 4.22, ये आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। तो याद नहीं करेंगे तो कैसे हमें समझ में आएगा, इसके लिए बहुत आसान सा एक चीज है, वो आप देख लें। अभी हमारा जो ये वीडियो है इसमें सी इन दिस वीडियो और मेन मोटिव इज टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड अल्काइल अमाइंस। पिछले पन्ने पे मैंने इनको कंपेयर करके बताया था विद रिस्पेक्ट टू पीकेबी, पर हमें पीकेबी की वैल्यूज रट तो सकते नहीं है, याद भी नहीं करनी है आपको। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वैल्यूज एनसीईआरटी में लिखी हैं, तो लिखकर मैंने आपको समझा दिया कि कभी किसी क्वेश्चन में पीकेबी की वैल्यूज दी हैं तो आप कैसे बेसिसिटी समझेंगे। बट एक्चुअली इस वीडियो का मेन मोटिव है ये कि हमें अमोनिया और अल्काइल अमाइंस की बेसिसिटी कंपेयर करनी है, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज थी पीकेबी की वो ना तो याद रखी जा सकती है ना रखनी है। दैट वॉज जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। अब अगर हमें अमोनिया और अल्काइल अमाइंस की बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको छोटी छोटी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते समय ये देखें कि मैं अमोनिया का फॉर्मूला लिख रही हूं NH3 नाइट्रोजन पे लोन पे, फिर मैं लिख रही हूं 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला RNH2, then I am writing 2 degree amine, it is R2, or if I expand it properly then R2N, ठीक है, and 3 degree is what, R3N। अब इनको ध्यान से देखें, यहां पर अमाइंस में 1 डिग्री अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, CH3 मान लें अगर इसको, तो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। जितना भी मिथाइल है छोटा बड़ा वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जहां भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स देते हैं सामने वाले को। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दे आर ERG ग्रुप्स। मिथाइल प्लस आई ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोल सकते हैं, आपने EDG ग्रुप पढ़ा है तो EDG भी बोलते हैं इनको, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर था, ये और दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा कर देगा। ठीक है, समझ देखते जाएं बस क्या हो रहा है। 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े हुए। 2 डिग्री में क्या हुआ, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उतने ज्यादा बड़े होते जाएंगे। यहां पर थोड़ी डेंसिटी बढ़ी, यहां और बढ़ी। यहां आ जाएं, देखें यहाँ पे 3 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा तो यहां देखिए अमोनिया में तो आपको समझ में आया कि कोई भी R नहीं जुड़ा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का एक लोन पेयर था वो एज इट इज है। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी, यहाँ और ज्यादा बढ़ी क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप थे, और यहाँ सबसे ज्यादा है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप था, यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप थे और यहाँ 3 प्लस आई ग्रुप थे। वो आपको इलेक्ट्रॉन का साइज देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है। अच्छा, हमें बताना है विच इज द गुड बेस, अच्छा बेस कौन है। ओके, तो बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर सब डोनेट कर सकते हैं, यानी सब बेस होंगे। ठीक, 2 बातें करनी है, बेस कौन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, सबके पास है, सब डोनेट कर सकते हैं, सब बेस है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है सब बेस है तो हमें मालूम है। गुड बेस कौन है, तो गुड बेस वो होगा विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, जो आसानी से दे दे। ठीक है, देते सब हैं पर अच्छा कौन, जो सबसे जल्दी दे दे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा है वो सबसे जल्दी देगा, यस और नो। ठीक, तो इसके पास सबसे ज्यादा है, सबसे जल्दी देगा। इसके पास उससे थोड़े छोटे हैं, थोड़ा जल्दी देगा। ये और कम और ये सबसे कम। तो बेसिक तो सारे के सारे हैं, मगर अगर कंपेयर करें तो अमोनिया जो है इन सब में सबसे कम बेसिक है। उसके बाद आए कौन, 1 डिग्री,
उससे अच्छे हुए, उससे अच्छा कौन हुआ 2 डिग्री, और सबसे अच्छा कौन हुआ 3 डिग्री। देखें सबसे अच्छा कौन हुआ 3 डिग्री, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। उससे पुअर कौन हुआ 2 डिग्री, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप थे, 2 आई प्लस आई। फिर उससे वीक कौन ये, सबसे कमजोर कौन अमोनिया। तो हमें समझ आ गया कि अल्काइल अमाइंस या जिन्हें आप एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ये है जिसे हमने अमोनिया से कंपेयर किया, ठीक। और अभी मैं इस वीडियो में ये समझाऊंगी नहीं, बट आपको अगले वीडियो में मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि ये तो हुआ अल्काइल अमाइंस का ऑर्डर एंड कंपेयर्ड विद अमोनिया। अगर इसी सीरीज में हम जोड़ दें तो एरोमेटिक अमाइंस सबसे कम बेसिक होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, पर यहां मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया है, इसे नोट कर लें। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ कि अमोनिया की बेसिसिटी अल्काइल अमाइंस और अराइल अमाइंस के बीच आती है, यानी अमोनिया कम बेसिक है अल्काइल अमाइंस से, लेकिन ज्यादा बेसिक है अराइल अमाइंस से। और अल्काइल अमाइंस का बेसिक ऑर्डर है 3, 2, 1, ठीक है। एंड दिस पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 which I have given you. Note it down, and this video will remain continue in the next lecture also. So I hope this much is clear. Thank you for watching. See me in the next video.